Hello. Good evening, sir. Yeah, good evening. Uh, what are the doubts you have? There are some questions you were asking. Yes, sir. That log question is done. Sir, no, the that question is not fully done. I understand like what to do, but I cannot solve the equation which is coming from it. Okay, 1 second. Uh, where did you get the question? Sir, it was on Google, like open question. That's Why are you doing random things? गूगल पे क्वेश्चंस कहाँ से ढूंढ रहे हो? सर जैसे वो सर्च किया था वो जो लॉगरिथम क्वेश्चन तो इसमें से वही आया था। फिर क्या गारंटी है क्वेश्चन में कोई आंसर आंसर भी है कि नहीं? सर मतलब आंसर नहीं इसका डेस्मोस मैंने देखा था तो सॉल्यूशन तो आ रहा था इनइक्वालिटी का। तो मतलब क्वेश्चन सही भी है कि नहीं उसका गारंटी होना चाहिए ना, बेकार में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? सर वो वाला देख लीजिए जो मैंने आज भेजा था वो सेंगेट से था। इसमें find the set of all 1 second. Find the set of all real values of x for which the following inequality holds. F of x multiplied by mod of log half x minus 3 greater than equal to root 2 root over log base 2 square minus 6x plus 10 minus 1. So first of all, we know that this thing is x minus 3 whole square plus 1. हम्म So it is greater than equal to 1. That means log 2 1 is greater than equal to 0 होगा. हम्म जो thing inside है it's always greater than equal to 0. So it is हम्म properly defined, right? यस सर। There is no issue with the definition. And now we have to think about this inequality. So inequality may, if I want to simplify the inequality, I know that this quantity is always positive because Positive and yes, sir. The mod is also positive. Root 2 is also root positive is and positive, the log is positive. square it. So I'm not going to square it. Okay. No, I'm going to take cases here and remove the mod. So I'm going to take two cases. X minus 3 is less than 1, in which case this log is positive, Hmm. right? Hmm. So x is less than 4, then the log is positive, and then my inequality is fx into log half x minus 3 greater than equal to, why will I square it, dude? कौन complicate करेंगे life? Okay, sir. स्क्वायर करने से सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, ऑब्वियस है वो. Hmm. आई विल कीप इट लाइक दिस. इट इज अ सिंपल केस, x लेस देन 4 पे इट विल बी पॉजिटिव दिस पार्ट. Yes, sir. सिमिलरली x ग्रेटर देन 4 पे ये माइनस साइन हो जाएगा. Hmm. यू विल गेट अ f of x log base 2 x minus 3. हाँ. This is for the other case where we have x greater than 4 का case, Hmm. right? Yes, sir. Okay, now here we, this is the situation. We need to think x less than 4 में इसको कैसे solve कर सकते हैं. Hmm. So we know that, okay, यहाँ पे रूट के अंदर कुछ कुछ है. तो यहाँ पे ये पता है हमको कि x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 का log बेस 2 है, और उसमें से एक -1 है. Yes, sir. Okay, and x is less than 4 is known, right? Hmm.
x is less than 4 is known, but x could be much more negative and then this will become bigger, right? हाँ So here माइनस इंफिनिटी या ये वाला चीज बहुत बड़ा भी हो सकता है, राइट? So this हम्म quantity could be quite large actually, right? हम्म When x is equal to 3, what happens? This becomes not defined, see? हाँ So इस साइड को डिफाइन करने का भी कुछ कंडीशंस है, राइट? हम्म इस साइड का डेफिनेशन का भी कुछ कंडीशन है, तो वो दैट वी शुड इमीडिएटली अप्लाई, राइट? हम्म Because we need to ensure now that this part is bigger than equal to 1, right? So हाँ x square minus 6x plus 10 is greater than equal to 2. So x square minus 6x plus 8 is greater than equal to 0. X minus 4, x minus 2 is greater than equal to 0 for definition of this, right? हम्म So x should be greater than 2 or x should be less than x should be less than 2 and x should be greater than 4, right? no, we got x should be less than 2 because we have 4 or taken x is less than 2. equal to 2. These are the conditions for the left right hand side to be defined, right? Hmm. That is a basic condition, like you cannot have x between 2 to 4 now, right? Yes, sir. और यहाँ पे ये तो डेफिनेशन में कोई इशू नहीं था, यहाँ पे सब केसेस ले रहे थे मॉड को हटाने के लिए, राइट? Yes, sir. डेफिनेशन में कोई इशू नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, समझ रहे हो ना? Yes, sir. नो नो, एक्चुअली डेफिनेशन में नहीं कोई इशू नहीं है. वी आर टेकिंग जस्ट सब केसेस टू रिमूव द मॉड हियर, राइट? हाँ, सो जब x लेस देन 4 का सब केस लोगे तो लेस देन 4 में तो इट हैज टू बी to be less than or equal to 2. हैज बी लेस देन इक्वल टू 2, राइट? करेक्ट. Yes, तो sir. ये वाला जो सब केस करेंगे इसको सॉल्व करेंगे x लेस देन इक्वल टू 2 में, राइट? Hmm. करेक्ट नो? Sir. और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में सॉल्व करेंगे ये वाला सब केस. दैट्स फाइन, आई थिंक देयर इज नो Yes, प्रॉब्लम देयर. yes, sir. सो x लेस देन इक्वल टू 2 में इसको सॉल्व करना है अब. और यहाँ पे हमको पता चल गया है कि now there is no problem of definition. Hmm. Okay, so now I know that this quantity is a positive quantity, right? One second, let Hmm. me think. Is it positive? Oh, wait. This quantity also has to be defined. X should be greater than no solution only there. Hmm. X minus 3 should Wait, be greater than 0. So x should be no greater than solutions. no यहाँ पे solutions. x लेस देन इक्वल टू 2 के केस में तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं Solution. है. हाँ, got ऐसे it. ही करके अब x ग्रेटर देन 3 यहाँ होना चाहिए और हमको ग्रेटर देन 4 ऑलरेडी बोल रहे थे, तो यही केस में सोल्यूशन मिल सकता है, राइट? Hmm. देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, इसी केस में मिल सकता है, राइट? Hmm. Yes, x sir. greater than equal to 4 में there is no definition issues, right? Sir. तो देखो अभी तक मैंने कुछ इनइक्वालिटी को सॉल्व किया नहीं है ऑलरेडी, बस डोमेन को चेक करके इतना सारा चीज पता चल गया है. Hmm. और तुम यहाँ पे स्क्वायर करके करोगे तो फिर कुछ होगा ही नहीं. Hmm. देखो, ब्लाइंडली स्टेप्स करना इज नॉट डूइंग एनी प्रोग्रेस. Hmm. Got it. First thing is to look at the question, figure out when does the question actually make sense. एंड दैट डोमेन चेक और बोथ साइड में समझना कि कब कब डिफाइंड है, उससे हम लोग को ऑलमोस्ट हाफ द प्रॉब्लम इज ओवर नाउ. Hmm. वी आर ओनली गोइंग टू लुक एट x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 and we are going to take this version of the inequality. Yes, sir. Now I will put f of x as this because now it is also log base 2 and all, right? Yes, sir. और इधर भी उसी टाइप का चीज है. नाउ इट इज अबाउट स्क्वायरिंग एंड ट्राइंग टू डू थिंग्स दैट यू आर डूइंग. Okay. बट we can now you should square it because root and all we don't want. So square it, get, but make sure that the solutions are under this condition. Hmm. After that, the steps that you have done might be fine. So you need to try it out later. Okay, But sir. we will move on. और क्या पूछा था तुमने? आज कुछ Yes, sir. पूछा था क्या? हाँ हाँ. कौन सा तो क्वेश्चन है? सर भेजा था मैंने कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इज फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी देन फाइंड द कंडीशंस.
फाइंड द कंडीशंस, क्या ऑप्शंस है? फिर ऑप्शन नहीं है ना then वो जो इलिस्ट्रेशन होते कंडीशन हैं ऑन ए ना, बी एंड सी। कंडीशन ऑन ए बी एंड सी, तो इसका समझ में नहीं आया कि कैसे करना है। काफी आसान लग रहा है, इतने इसमें समझ में नहीं आने का क्या है? इसे पूछ क्या रहा है सब, बस वो समझ में नहीं आया। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर, फैक्टर का मतलब नहीं पता है? नहीं, फैक्टर का मतलब पता है कि वो डिविजिबल है, एक्स क्यूब बस प्लस बी वही एक्स। पूछ रहा है, उतना ही तो पूछ रहा है और कुछ पूछ ही नहीं रहा है। ऐसा कोई गारंटी है कि कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन विल डिवाइड एनीथिंग लाइक दिस कंप्लीटली परफेक्टली? नहीं, डिपेंड करता है वैल्यू। हाँ, तो वही पूछ रहा है, क्या क्या कंडीशन है डिपेंड करने की? अच्छा। परफेक्ट डिवीजन का क्या कंडीशन है, राइट? यस सर, जब इसके जो एक्स स्क्वायर प्लस बहुत एक्स प्लस सिंपल है, विल से लाइक दिस, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय सम लीनियर फैक्टर। हम्म। ऐसा ही होगा ना? करेक्ट? यस सर। If you want, you can even remove the p because we have already got an ax square, so we just need an x, right? हम्म। So technically, you can just put x plus p, right? हम्म। Because ax cube term banana है ना, हम्म। plus there is no remainder because this is a factor. हम्म। We'll just match the terms and get the conditions. अच्छा, ये बोल रहा था, गॉट इट सर, मतलब कुछ एबीसी में रिलेशन पूछ रहा था। ऐसे करके करोगे, कोफिशिएंट्स को मैच करोगे तो p को एलिमिनेट करना है फिर। हम्म। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस ए पी एक्स प्लस पी, इसको मल्टीप्लाई कर दो a से, ए एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पे ए। a प्लस p है, राइट? सो हाँ ए स्क्वायर प्लस ए पी एक्स का। स्क्वायर, हाँ। और x का टर्म दो है, वन प्लस ए पी, सो इट बिकम्स a प्लस ए स्क्वायर पी हाँ। एक्स प्लस ए पी, राइट? यस सर। The conditions are a square plus ap is 0, हम्म। a plus a square p is b, and ap हम्म। is c, right? हम्म। Obviously, we cannot take a is not equal to 0, otherwise it's not making any sense, right? हम्म। तो इसमें से फैक्टर जो है a का फैक्टर उसको कैंसिल कर सकते हैं, so a plus p is equal to 0, so p is equal to minus a. हाँ। Put that everywhere, you are तो भी getting a plus minus a cube is equal to b, right? एंड माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी। And c is equal to minus a square. अच्छा, ओके, गॉट इट, ये करना था। This is very easy, no? हाँ सर, मतलब इजी तो है, वो समझ में आया था ना, पूछा क्या है इसलिए कंफ्यूज हो बहुत गया। ऑब्वियस है, स्टेटमेंट तो ऑब्वियस ही था। दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। फैक्टर का मतलब समझ में आना चाहिए कि व्हेन यू डिवाइड देयर इज नो रिमाइंडर, यस सर। so you have to do a division algorithm and say that the dividend is equal to quotient into divisor. हम्म। गॉट इट सर। What are the other doubts? बस इतना ही था। What about the other people? क्या क्या किया है तुम लोग ने, क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है अभी तक क्वाड्रेटिक में? मॉड्यूल सर कर लिया है, इलस्ट्रेशन कर लिया है। क्या डाउट्स है बताओ? सर इलस्ट्रेशन में तो नहीं है। कहीं पे भी है डाउट्स कुछ भी? डाउट्स पूछ रहा हूँ तो तुमको कुछ भी डाउट्स है तो पूछ सकते हो। हाँ सर, जैसे कुछ मॉड्यूलस क्वेश्चन में सर मॉड ऑफ एक्स प्लस 10 का ग्राफ पूछा था, ये सब तो ये सब कैसे बनाते हैं? ये सब कैसे बनाते हैं मतलब, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ पता है? हाँ। यस सर। मॉड ऑफ एक्स प्लस 10 का ग्राफ होगा, उसको लेफ्ट शिफ्ट बाय 10 यूनिट्स, दिस इज द ग्राफ एट -10 पे हो जाएगा वो। यहाँ पे जीरो था, ऑब्वियसली मॉड ऑफ एक्स प्लस 10 -10 पे वो जीरो हो रहा है ना वो, हम्म। लेफ्ट शिफ्ट बाय 10 यूनिट्स, राइट? हम्म।
Same thing if it was mod of x minus 3, it would be a right shift by 3 units, right? हाँ. ये 3 पे आएगा वो, right? हम्म. Right shift by 3 units. This is like a standard basic transformations. इसके ग्राफ से ऐसा और ऐसा, right? Left or right shifts. हम्म. There are many such transformations. Like if I have mod of 2x, mod of x का ग्राफ ऐसा है, mod of 2x का ग्राफ कैसा होगा? इसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तुमको पतला बाय हो जाएगा. हाफ. वैसा. अगर इफ यू थिंक अबाउट इट, ये वाला ग्राफ अगर ऐसा चल रहा था तो ये वाला तो. ग्राफ मच मोर कॉन्ट्रैक्टेड है, क्योंकि जब हम्म. x 1 होता है तो वो mod 2 हो जाता है. हम्म. mod 2 यहाँ पे कहाँ कब हो रहा था? जब x 2 हो रहा था तब, राइट? हाँ. यहाँ पे तो 1 पे ही mod 2 हो जाएगा ना वो. हम्म. तो जो चीज यहाँ पे जो हाइट पहुंचा था ये ग्राफ, वो 1 पे ही पहुंच जाएगा ये. जबकि हम्म. पुराना वाला ग्राफ थोड़ा देर लग रहा था ना, 2 तक जाना पड़ रहा था. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर. So starting from a mod x graph, mod of ax would be a contraction by a units. Mod of x by a would be an expansion by a times, right? हाँ, क्योंकि उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी होगी एक्स पर्टिकुलर Mod वैल्यू of पे. x plus minus 3 or plus minus some constant would be a vertical shift by that many units. हाँ, क्योंकि वाई एक्सेस उसके वाई वैल्यू पे डिफर हो रहा है ना. गॉट इट. अच्छा. ये सब सब कॉमन सेंस चीजें हैं, थोड़ा सा प्लॉट करके समझना है. डेस्मोस पे करोगे तो कुछ नहीं आएगा. तुमको डेस्मोस को यूज कम करना है और खुद से ज्यादा ग्राफ बनाना है. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सर. डेस्मोस के भरोसे जो लड़के रहते हैं उनका हो जाता है कि इट्स लाइक अ क्रच. जितना तुम हैबिट करोगे कैलकुलेटर्स और डेस्मोस का, उतना तुम्हारा माइंड काम करना बंद कर देगा. ओके सर. इट इज फॉर एवरीवन आई एम सेइंग, don't use calculators or graphing tools. Try to do it yourself. The more you build that habit of doing it yourself, the better it will be for you in the long run. You can use this at the last resort, जब बहुत देर हो गया नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है तब, but not normally. Otherwise your mind will stop working. Anyway, सैफ, तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है क्या? एक्सरसाइज में, इलस्ट्रेशंस में, कहीं पे भी? सर एक्सरसाइज नहीं किया था, इलस्ट्रेशंस तो पूरा कर लिया था सर, उसमें डाउट नहीं है. ठीक है. रुद्र जी, तुम्हारा क्या सिचुएशन है? सर मैंने क्वाड्रेटिक वाला नहीं किया है। मैं वो मैथ्स ओलंपियाड के लिए वो ज्योमेट्री वाला कर रहा था। Those two things are separate things. You have to do both. So यस जेई सर। जेई के लिए तैयारी अब नहीं कर रहे हो क्या? नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो क्वाड्रेटिक का क्या प्रोग्रेस हुआ है उसमें? मैथ्स ओलंपियाड में भी क्वाड्रेटिक का काम आएगा. इक्वेशंस आते हैं कभी कभी आरएमओ में. पीआरएमओ, इनमो, ये सब में इक्वेशंस आते हैं. आरएमओ में इक्वेशंस आते हैं क्वाड्रेटिक. मतलब मैथ्स तो मैथ्स है, मतलब वो कुछ भी तुम नहीं था. होमवर्क अगर नहीं करोगे तो फिर कैसे तुम्हारा बेनिफिट होगा क्लासेस का? अभी तो छुट्टी हो रहा होगा ना स्कूल में. हाँ सर। यस सर. तो इतना टाइम मिल रहा है, तुम कर क्या रहो फिर? सर फिजिक्स वाला फिजिक्स जो है वो भी कर रहा हूँ, और जो 11th 12th का केमिस्ट्री भी करना है तो। वो सबको पता है कि 3 सब्जेक्ट है. तुमको लगता है न्यूज है क्या? नया न्यूज आ रहा है. फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है और मैथ्स भी करना है. ये सरप्राइज थोड़े है भाई. ये नहीं तो नहीं सर। कॉमन नॉलेज है ना, सबको तीनों सब्जेक्ट्स करने हैं. इसमें इतना शौक होने का क्या है? दिन में 10-12 घंटे हैं पढ़ने के, उसमें 3-3 घंटे करने हैं सब सब्जेक्ट्स. ये सिंपल मेथड है. ऐसे कर रहे हो तुम? 10 घंटे पढ़ रहे हो दिन में? हो जाता है सर, 8 9 घंटे हो जाते हो जाता है.
तो मैथ्स का 3-3 घंटे अगर डेली पढ़ रहे थे तो क्वाड्रेटिक में प्रोग्रेस क्यों नहीं हुआ है? मैथ्स में 3-3 घंटे लास्ट 4-5 दिन से क्या किया तुमने? लास्ट सर 4 डेज का बताओ, 12 आवर्स ऑफ वर्क, राइट? सर मैंने फिजिक्स किया था, तो फिजिक्स किया था और केमिस्ट्री किया था, 11th का और 12th का, थोड़ा थोड़ा। मतलब ये कौन सा प्रोसेस है? मतलब वो मेरा एकदम ही नहीं हुआ था, इसीलिए वो कर रहा था। नहीं नहीं, मुझे थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा, तुम 11th और 12th का साथ साथ कैसे कर रहे हो? एक साथ कर रहा हूँ, मतलब मैं तब क्लास 10th में था तो तब 11th किया था, तो तुम अभी किस अभी। क्लास में हो? हाँ, अभी अभी 11th में हूँ, मतलब 10th दिया हूँ, 11th में जाऊंगा। तुम 11th में जा रहे हो तो तुम जो 11th और 12th दोनों का केमिस्ट्री पैरेलल में कैसे पढ़ रहे हो भाई? मतलब जब मैं क्लास 10th में था तो 11th किया था थोड़ा थोड़ा, हाँ केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों ही किया था। हाँ। और इसीलिए मैं जब 11th में आया हूँ तो पैरेलली 11th और 12th दोनों बोथ कर रहा हूँ, दोनों ही एक साथ कर रहा हूँ। तो क्या क्या चैप्टर्स कर रहे हो दोनों केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री का जो स्टार्टिंग चैप्टर है वो हाइड्रोजन, अरे हाइड्रोकार्बन्स जो है, जो 11th का है वो कर रहा था, और जीओसी कर रहा था 12th का। तुम्हारा कोई केमिस्ट्री टीचर है क्या? हाँ है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का डिस्कशन करने का कोई पॉइंट नहीं है, तुम्हारा टीचर यही से बोल रहा है ऐसे करने। क्या सर? तुम्हारे टीचर ने बोला है ऐसे करने। हाँ, टीचर ने कहा था। ठीक है, और फिजिक्स में क्या कर रहे हो? फिजिक्स में जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ काइनेमेटिक्स का, और 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्वेश्चंस कर रहा हूँ। फिजिक्स का भी कोई सेपरेट टीचर है क्या तुम्हारा? हाँ, ये किस टाइप का मतलब? देखो। मैं क्लास 10 से कर रहा हूँ ना, इसीलिए ओ, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, HCV पूरा बन गया 11th वाला? नहीं। वॉल्यूम इसे 1। लड़ोड़ा कर रहा हूँ, इसे लड़ोड़ा। SL अरोड़ा? हाँ। दैट इज योर बेस बुक? यस। I have not even heard of this guy. What is the name of this book? What's the name of this book? मतलब इसे लड़ोड़ा ही कहते हैं, किस चीज के लिए तैयारी कराता है ये SL अरोड़ा? फिजिक्स के लिए, फॉर विच एग्जाम? और जेई वगैरह के लिए। वो जेई मतलब वगैरह ओवरऑल के होता लिए? है, ओवरऑल होता है। मतलब जो मैं जब 10th में था हाँ। तब मैं वो बुक मुझे करने के लिए कहा था टीचर ने, तो वही कर रहा था। उसके अंदर नीट वगैरह भी है और जेई भी है। ठीक है, ठीक है। देखो। एसी भी करना है, एसीबी भी करना है। हाँ, जैसे तुम बोल रहे हो ना, जो तुम बोल रहे हो भी करना है, भी HCV भी करना है, वैसे करके में नहीं होता है कभी भी तैयार। HCV भी करना है और SL अरोड़ा मेन बेस बना के करना है। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस बुक। किसी और ने सुना है SL अरोड़ा का बुक? नो सर, ऐसे लो नहीं सुना है सर, अरोड़ा तो नहीं SL अरोरा सुना है सर। सुना है? क्या होता है ये बुक SL अरोड़ा? सर वो CBSE में रिकमेंड होता है बोर्ड्स के लिए। क्योंकि मैंने 15 साल पहले जेई लिखा था, उसके बाद से 5-6 साल से भी पढ़ा रहा हूँ। 7-8 साल से अभी पहली बार सुना है कि जेई की तैयारी के लिए इसको चाहिए। नहीं सर, वो तो बोर्ड्स के लिए है। हाँ तो देखो, रुद्रोजीत, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, ये सब सब करना बंद कर दो अगर तुमको जेई का तैयारी करना है, ठीक है? आई एम नॉट ट्राइंग टू स्कोल्ड यू और एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर ओन बेनिफिट। SL अरोड़ा को डिलीट कर दो अपने लाइफ से। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फिर क्या करूं? HCV, जेई मेंस, PYQs। तो जेई एचसीबी में की फिल्म कुछ बहुत भी कर अच्छी रहा है हूँ। तो। एसीबी भी मतलब मैंने पहले वो एसी लड़वा किया था, उसके बाद मैं जेई मेंस का पीवाई की उसी कर रहा हूँ। HCV वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 जो भी चीज कर रहे हो, अगर तुमको दोनों साल का करना है, 11th और 12th करने का एक साथ में ही मन कर रहा है इतना, आई एम नॉट सेइंग डोंट डू दैट, बट ऑल यू हैव टू डू इज फिनिश HCV कंप्लीटली 100%। तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है ना इसमें? नहीं।
हाँ, मेक दिस एज योर मेन टारगेट। HCV 100% करना है, एवरी क्वेश्चन इन HCV, एवरी ऑब्जेक्टिव, every solved example, every question in the exercise सर न्यू without स्टार्टर, fail। सर न्यू स्टार्टर्स के लिए भी सही है सर ये, जिसने फिजिक्स अभी तक छुई छुई नहीं है 11th की? सबके लिए सही है, किसी के लिए भी गलत नहीं है, सबके लिए सही है। न्यू स्टार्टर्स के लिए आई वुड से कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन 12th ऑब्वियसली, यू नीड टू नहीं पर स्टार्ट 11th, इन अ सीक्वेंस, गो हाँ 11th but स्टैंडर्ड वॉल्यूम 1 इन अ सीक्वेंस। जब HCV हो जाए, स्टार्ट डूइंग जेई मेंस के कुछ PYQs, a few advanced questions, and then move on to the next chapter. You don't have to do a PhD on the chapter right now। समझ में आ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म किसी किसी कोचिंग में कहीं कहीं टीचर्स ऐसा करने लगते हैं कि एक एक महीना तक एक ही चैप्टर करते रहते हैं। मैंने अभी रिसेंटली कल परसों एक बच्चे से बात की है जिसका अभी 12th स्टैंडर्ड शुरू हुआ है, और March 4th से लेके March 30th तक उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ा रहे हैं अभी तक कोचिंग में, और अभी वो चैप्टर भी पूरा फुल नहीं हुआ है। दिस इज चैप्टर 29 फ्रॉम HCV वॉल्यूम 2, और उसका भी हाफ बड़ा ही हुआ है। बड़ा चैप्टर है क्या सर? कोई चैप्टर इतना बड़ा नहीं होता है, मतलब इस टाइप का तैयारी नहीं करना है। इस टाइप का जो होता है ना, फिक्सेशन, ऑब्सेशन, एक ही चैप्टर को बनाते जा रहे हैं, एक जगह से फिर दूसरे जगह से फिर तीसरे जगह से, इरोडोव कर रहे हैं, पाथ फाइंडर कर रहे हैं, ये सब सब अभी नहीं करना है। खासकर जो पहली बार कर रहे हैं, अगर तुमने पहले से ही HCV बना लिया है तो फिर और सब चीज कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे ने HCV नहीं किया है, उसको बस HCV करना है फुली 100%, थियरी प्लस एक्सरसाइजेस, एंड देन JEE मेंस PYQs, एडवांस्ड क्वेश्चंस कुछ कुछ कर लो। इट माइट नॉट बी 100% राइट नाउ, फर्स्ट टाइम में 70-80% भी बन गया तो बहुत अच्छा है, एंड देन मूव ऑन। हम्म दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, move मूव on, ऑन। दूसरे चैप्टर पे। हाँ, क्योंकि ओके। पॉइंट है कि ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स सीखना है in a short period of time. Hopefully, in 1 year, can you finish the physics? Can you finish the physics syllabus in 1 year? Which means volume 1 and volume 2. You cannot do multiple books if you want to prepare in a 1 or 2 year time span. You need to focus on HCV, do JEE mains PYQs, a little bit of advanced, and move on when you have reached 70% level there. द हम्म पॉइंट इज कि सेकेंड टाइम करोगे तो बेटर हो जाएगा, रिवीजन होगा तो बेटर होते जाएगा। लेकिन अगर तुम एक ही चीज पे फिक्सेट होके करते जाओगे तो टाइम ही नहीं मिलेगा सिलेबस खत्म करने का। हम्म The point is in all subjects actually, to point is to go ahead, try to finish the syllabus and get a holistic view of the subject where you understand the subject at a glance, पूरा सब्जेक्ट थोड़ा समझ में आ रहा है। ये नहीं कि एक ही चीज में PhD अचीव कर रहे हैं लेवल। गॉट इट सर। और रुद्रजीत, अगर तुम 11th और 12th दोनों का चैप्टर्स कर रहे हो तो ऑलरेडी देर इज टू मच वर्क, दो दो चैप्टर्स चल रहे हैं एक टाइम पे, राइट? यस सर। हाँ, तो दो दो चैप्टर्स जो चल रहे हैं एक टाइम पे तो तुम कितने जगह से करोगे? एक जगह करना है बस, HCV, नथिंग एल्स। अगर HCV के अलावा कुछ और करोगे तो JEE मेंस के PYQs करना। ठीक है सर। ये सब सब SL अरोड़ा और रैंडम बुक्स पढ़ना बंद कर दो, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ अभी, ठीक है? ये सब सब ठीक। पता नहीं कौन तुमको रेकमेंड कर रहा है और क्या बोला जा रहा है, सीरियस नहीं है। जो जो बंदा ऐसे करके बुक्स रेकमेंड कर रहा है या ये कर रहा है वो सीरियस नहीं है JEE प्रेप के लिए। तुमको मन में लग रहा होगा कि तुम सीरियस हो, लेकिन ये सब सब करने से वो सीरियसनेस दिख नहीं रहा है। द बेस्ट बुक इज HCV, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू डू JEE मेंस PYQs, एडवांस्ड PYQs। डोंट डू एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स इज अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। एनीवे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आके अब थियरी अगर सबका खत्म ही हो गया है और कोई डाउट भी नहीं पूछ रहा है तो आई विल आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस, देन वी विल मूव ऑन।
लोकेशन ऑफ फ्रूट्स वो सब नहीं हुआ है ना? सबको समझ में आ गया ना, सबने मॉड्यूल पढ़ लिया है, कोई डाउट नहीं है किसी का? हाँ सर, मॉड्यूल तो आ गया था, लोकेशन ऑफ रूट। तो ऐसा देखने में लग रहा है कि सबको आ गया है, तो फिर मैं क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करूं? लेट्स डू सम क्वेश्चंस एंड we'll see if everybody is able to solve or not, right? So ओके। the question is, location of roots तुमको समझ में नहीं आया क्या अनिकेत? नहीं सर, पढ़ लूंगा सर। अभी तक पढ़ा नहीं है? तो उसके ऊपर ही था सर, मेरे लोकेशन ऑफ फ्रूट सोचा आप कराएंगे तो फिर देख लेंगे। तुम बोल रहे थे तुमने मॉड्यूल पूरा खत्म कर लिया है। सर मैं वही कर रहा था कि एक किया फिर उसको दो तीन जगह से क्वेश्चंस कर रहा था, अब समझ में आ गया कि ऐसा नहीं करना है। दो तीन जगह से नहीं करना है, एक चीज को सही से करना है। कभी भी एक चीज ही सही से 100% फिनिश करना है। तुम जो कर रहे हो ना, ये सब गूगल पे सर्च करके क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो, ये सब है टाइम पास। यही कहा जाता है 11th में बंदा टाइम पास कर रहा है। फोकस रखना है, बाद में टाइम खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद पछताओगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। एक चीज को 100% करना है, लोकेशन ऑफ रूट छोड़ दिए हो और बाकी इधर उधर कर रहे हो तुम, लॉगरिथम के क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो। तुमको रियलाइज हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। थियरी कंप्लीट करना है, मॉड्यूल कंप्लीट करना है, और जब हो गया तो फिर वी नीड टू मूव ऑन, दैट्स ऑल। You don't need to find extra things to do right now, other things, other books. जी सर। जो भी एक्स्ट्रा चीज आएगा, जरूरत होगा, I will share that with you, or I will discuss that in class. There is no need to do you rack your own brain to find those things. हम्म। Location of roots का concept बहुत easy है, and the type of questions, like in most books, they will give you a list of conditions. It is all common sense stuff. So I would recommend that you don't try to remember any conditions. The questions will be things like this. If alpha and beta are roots of ax square plus bx plus c, and both roots are less than 3, what can we say? Both roots are less than 3. Let's say this is my quadratic. The quadratic could be like this or like this, right? यस सर। If roots are less than 3, then 3 is somewhere here. If 3 is somewhere here, we know that f of 3 will be positive, right? हाँ। In this graph where a was positive, right? सर। And in this graph, He f will be of 3 negative. will be negative and a was negative, right? यस सर। So obviously, if you want to say it in one step, you can say a times f of 3 is greater than 0. ओह। It combines both the cases, हम्म। right? यस सर। That is the condition. And also, obviously, d is greater than 0 for two roots to exist. हम्म। That is the relevant condition for this problem now. Do you understand? यस सर। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। बहुत टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। लेट्स से 2 lies between the roots. ओके। तब तो फिर अगर एक ग्रेटर है तो फिर एफ ऑफ टू नेगेटिव होगा और 2 lies between the roots, so you will say 2 lies somewhere between. So f of 2 is less than 0 when a is greater than 0. And here f of 2 is greater than 0 when a is less than 0. So the गॉट इट। condition is obviously a times f of 2 is less than 0. And the condition for the two roots to happen is d greater than 0. Both the conditions are important, otherwise the graph will not have two roots if this is not happening, right? यस सर। So if you see that whole section, location of roots wala section, there will be many such different cases. Students try to memorize it. There is no need to memorize anything. It's यस सर। common sense stuff. You need to draw the graphs and figure out
what condition will represent all situations, right? Yes, sir. तुम देखोगे 5 टाइप दिया हुआ है, कुछ भी याद करने का नहीं है, सबको समझ लेना है एक बार. बिल्कुल. जी. All the cases you need to understand, and you can already do it on your own depending on what they are saying. Sometimes they also add an additional condition if somebody is saying that D is above the roots. You can also say that the vertex should be below D. So the D ka position is x is equal to D. Vertex ka position is x is equal to minus b by 2a. So obviously the vertex is going to be behind D. So in some of the cases you will see that there is a vertex condition also that is added, Yes, sir. right? Yes, sir. And all of it is common sense stuff. Depending on the problem, we'll apply it ourselves. We don't need to memorize anything here. Okay, we'll look at a couple of questions at least. Question number 2 of exercise 4B. सबने किया है इसको? सर एक मिनट सर. सर एक्सरसाइज तो नहीं किया था. हाँ तो सर क्वेश्चन लिख. भी सर ट्राई करो. जी सर करना. सर ये कौन से उसमें मतलब मॉड्यूल में ही है सर? हाँ, quadratic equation की there is a separate sheet for quadratic equations theory. There is a quadratic equation exercise sheet in the folder. हाँ In the folder, there is a separate file for the exercise, which has just the हाँ exercise. हाँ. मिल गया सर मिल गया. क्वेश्चन 4. Question 2, exercise 4B. ओके. Let P of x is x square plus b. कर रहा हूँ सर.
ऑलमोस्ट पूरा आंसर मेंटली भी आ सकता है, बस थोड़ा सा डाउट बचा है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। Because you can directly say that C has to be a factor of 25 and 5. So C has to be either 1 or 5. And similarly, B has to be a factor of 6, 4, 28. So B has to be 2. It cannot be 3. Definitely. 1 or 2. इसी में डाउट। तो या राइट। तो अब थोड़ा सा सॉल्व करना है बस। Why am I saying all this? Because जब भी इसको किसी क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट होके यही सब टर्म्स आएंगे ना फिर। Yes, sir. So this has to be, since B and C are integers, these has to be divisors of these numbers, right? Hmm. B should divide 6, C should divide 25, B should divide 4, 28, C should divide 5 and all. Hmm. Ultimately, you will have to do it like this: x square plus bx plus c. Keep this information in mind. That will help you reduce the cases and all. Right? Hmm. x square plus bx plus c को क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे? px square, actually simply x square plus px plus q to give x power 4 plus 6x square plus 25, right? Hmm. Now, if you think about it, x power 4 की टर्म तो एक ही तरीके से आ सकती है। x square की टर्म, x cube की टर्म वैनिश होनी चाहिए, right? Yes, sir. So b plus x cube will also come when you do p into this, right? Hmm. There is no other way x cube can come. So this should be 0, right? Hmm. B is equals to minus p. So the x square term can appear by doing q plus c plus bp, right? Hmm. Correct? Hmm. And finally cq is equal to 25. Hmm. x टर्म भी वैनिश करना चाहिए। x टर्म कहां से आएगा? bx को q से, तो bq प्लस px को c से, so cp। Hmm. Correct? Yes, sir. So immediately we will say p is equal to minus b first, right? And eliminate that. Correct? Hmm. So you will get q plus c minus b square is 6. And bq, p is minus b. So minus bc, right? Hmm. Is 0. And b common, q minus c is 0, right? Yes, sir. So either b is 0 or q is equal to c, right? If Hmm. q is equal to c, you are getting c is equal to plus minus 5 Hmm. is equal to q, right? Hmm. So q is equal to c का केस ले रहे हैं कि b is not equal to 0 मान रहे हैं अभी, right? Hmm. q is equal to c plus minus 5, so minus 5 I think we should not take. Hmm. For now let's do the plus 5 case, because minus कर लेंगे तो यहाँ पे minus minus आ जाएगा, right? q and c. Hmm. It is never fitting this condition, right? Hmm. So you are getting q plus c, 10 minus b square is 6, so 10 minus 6, 4, b square is 4, right? Hmm. b is plus minus 2 is coming in this case. Hmm. Correct? Yes, sir. So we are getting b is 2, c is 5, right? Hmm. In this case, plus minus 2 भी आ रहा है, minus 2 भी possible है. So now we have to look at the other case, right? Yes, sir. We are getting b is plus minus 2, c is 5, right? Hmm. Do you understand? Yes, sir. Similarly, from the other case, you will get some conditions on it, no? Same way. Hmm. And then you should be able to eliminate and get what is the guaranteed. You have to do intersection, right? Yes, sir. Is everyone understanding what I'm saying right now? सर c इक्वल टू प्लस माइनस 5 इक्वल टू q के बाद एक बार फिर बता दीजिए। -5 अलाउड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे -5 विल नॉट फिट। -5 डालोगे तो क्या होगा? -10 minus b square is 6, not possible. ओके।
-5 को रिजेक्ट कर दिया, राइट? हम्म तो +5 करने से 4 आ जा रहा है b², राइट? यस सर तो b² का वैल्यू, b का वैल्यू ±2 हो सकता है, c का वैल्यू +5 ही होगा, राइट? सी का तो हमें पता है +5 होगा, हाँ, पता नहीं था, -5 भी हो सकता था, right? लेकिन सर वो कंडीशन नहीं मैच करती ना यहाँ पे, तो आपने बताया। हाँ, ये कंडीशन मैच नहीं कर रही है, और -5 is not looking like a factor of this, right? हम्म I mean, unless the other one is also negative and all. Well, it is a factor technically. So we have this much information that has come about this from the first thing. Now from the second thing, we will write a similar equation, but this time we will say x² plus bx plus c multiplied by 3x² plus something, right? हम्म Because the first coefficient is 3 here, so my quadratic afterwards has to have starting with a 3, right? हम्म 3x² plus, let's बस say ax, yes, s, okay, whatever. We'll just L5 take a variable L5 lx plus m, ठीक right? है तो, And that should be equal to this one. So हाँ then again you will start getting conditions. 3 वाला कंडीशन डायरेक्टली मैच कर रहा है, x³ वाले कंडीशन से स्टार्ट करना है। जीरो x³ हाँ कहाँ कहाँ से आ रहा है, l से, और 3b, और bx और 3x² से ये, हाँ राइट? हाँ दिस इज द तो सिचुएशन। नाउ x² के टर्म कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, m प्लस 3c सी सी यस सर प्लस bl, BL राइट? दैट शुड यस एड सर अप टू 4। 4 x का टर्म कहाँ कहाँ से आ रहा है, bx मल्टीप्लाइड बाय bx और कांस्टेंट m यस सर mb और lx and c प्लस lx and c lc, और नो अदर वे, राइट, yes sir is is 28, 20 and and cm cm is 5 is 5, and we know हम्म that b and c are integers and all, right? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो l को एलिमिनेट करेंगे, l इज इक्वल टू -3b, एंड विल पुट दैट एवरीवेयर, राइट? हम्म जहां जहां l आएगा वहां -3b डाल देंगे। हम्म m प्लस 3c माइनस 3b² इज इक्वल टू is 4, 4 और mb माइनस 3bc इज 28, 28 yes sir और यहां से फैक्टराइज कर लेंगे, b हम्म कॉमन, m माइनस 3c इज इक्वल टू 28, right? Now yes obviously b was only supposed to be ±2, and b is a factor of 28, right? हम्म So we know already b has to be ±2, so this has to be ±7, right? Correct? yes sir Do you understand what I'm saying? sir we can take सर m is प्लस equals माइनस to 14 नहीं होगा? sir हाँ, cm मतलब में वही ±14 obviously। हाँ सर cm c की तो वैल्यू हमें पता ही है 5 तो फिर हाँ, c की वैल्यू ऑलरेडी पता है, वो डालना अभी तक भूल गए थे। तो तो c की m की वैल्यू वैल्यू पता है 1 5, तो m की वैल्यू 1 पता चल गई, राइट? हाँ तो 1 -3 × 5 -14 आ रहा है, तो यहाँ पे -2 होगा, राइट? -2 होगा तो b तो -2 इससे हो b गया कंफर्म हो गया कि b -2 है, c 5 है, और a, और ऑलरेडी माई आंसर इज कमिंग नाउ, 1 -2 + 5, आंसर इज 4। yes इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग? yes sir सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, this was just one question, 4b. You should do all the exercises in 4b. 4b has some nice questions. Similarly 4a, 4b, 5a, ये सब तो करना ही है। Ideally you should finish all the exercises. yes sir So those who have not worked on it, please make progress, and like I'm not going to do classes on quadratic beyond this week. So next week से नया chapter होगा. So sequential series हाँ, make sure you finish whatever you have to finish and ask whatever doubts you want to ask. Quadratic is over by the end of this week. okay sir यस So कर लो जितना कर सकते हो, और जो भी पूछना है पूछ लो, उसके बाद आगे अगला चैप्टर होगा फिर। हम्म ठीक है, that's all for now. I'll see you next class then. okay sir